Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Priya Suhail and today we are going to learn about more features on MS Word. In our previous lecture, we have learned about few features like autocomplete, autotext, autofill, but now we are going to explore it more with the new features and with new words. So let's see what are the new features which we are going to learn today. So, the first is symbols and special characters, header and footers, footnotes and endnotes, watermark. Okay, so we are going to explore it one by one. So let's start with symbols and special characters. Okay, so what are the symbols which we use in Microsoft Word? Symbols are basically used for writing and typing, but these are other than the letter or number. Okay, because letter and number you can easily found in your keyboard. So those characters which are not present in your keyboard are known as symbols and special characters. Okay, and special characters is again it's not an alphabetic or numeric character. Other than that, आप लोगों को you can see in the picture आपको नजर आ रहा है जैसे ये वाला सिंबल जो सर्कल की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है. This is a special character. Okay, it's a special symbol which we use when we are going to write email or something like that. Similarly, ये जो बाकी की जो आपको symbols नजर आ रहे हैं like this. These are the special symbols. Okay, so these symbols we use in Microsoft Word when we need it according to our document requirement. Okay, so I'm switching it to the MS Word and where I will show you that from where I got this option of symbol. Okay, so now I have opened the Microsoft Word. So यहाँ पर आपने सबसे पहले you have to go into the menu bar, which is your second option. You have to select insert, and then you will come here in the last. You have an option of symbol. Okay, so simply click on it, and you will have a multiple symbols. If you not found of your choice, अगर आपका इसमें available symbol आपको नजर नहीं आ रहा और वो आपने कोई insert और करना है, तो you just simply click on more symbols. Whenever you clicking more symbols, so here you can see we are having different kind of symbols. Okay, ये सारे symbols हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. Okay, इसी तरह जब आप स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी शॉर्ट की भी आपको दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने M- प्रेस करनी है तो सिंपली क्लिक ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस नंबर फ्रॉम योर कीबोर्ड. इसी तरह लेट से अगर आपने रजिस्टर्ड का साइन जो है वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करवाना है तो यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर. तो रजिस्टर्ड का जो की है वो वहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट. अब मैं आपको एक सिंपल इंसर्ट करके दिखाती हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू दिस सिंबल आई हैव टू इंसर्ट. सो आई सिंपली क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन तो यहाँ पर आपको ये सिंबल जो है नजर आ रहा है जो कि मैंने अभी इंसर्ट की. ठीक है, तो ये वाला सिंबल है जो हमने अभी इंसर्ट किया सर. इसी तरह अगर आपने कोई और सिंबल करना है जो सिंपली गो देयर, यहाँ से अभी आप कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस बीटा अल्फा. Okay, so this is how we can insert a symbol. Okay, what next? This is header and footer. Header and footers basically we use for when we want something to be appear in every page of your document. Okay, and header is basically used is the top margin of each page. For example, अगर आप चाह रहे हैं that your school name must be printed in all the pages of your document. ठीक है, if you are going to type a test, if you are going to making a document, तो आप ही चाह रहे हैं कि आपका जो स्कूल का नेम है वो टॉप ऑफ द पेज आएगा. So then you will use header. Okay, and if you want that आपके जो डॉक्यूमेंट के पेज के हर पेज के ऊपर
पेज नंबर आना चाहिए, या ये आना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट किसने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फूटर। Header is used for heading, like header, and footer is basically used for inserting page number or the name of the text जो भी आपने जिसने भी prepare किया, अगर आप वो देना चाह रहे हैं तो you can do this. So now again I am going to MS Word and will show you that how we can insert header and footer. Okay, so I am here again. You have to again select the option insert from the menu bar, and then here you have an option of header and footer. ठीक है, पहले हम देखेंगे how we can apply header. Simply click on it. It will give you different kinds of built-in options. Built-in means that already आपने simple इसमें से कोई चीज select करनी है और वो उस तरीके से आपके सामने appear हो जाएगी, ठीक है। For example, आपके पास ये different options हैं, आपके पास designing वाले भी हैं, ठीक है। For example, I am choosing this. अब यहाँ पर आ गया, let's say I am writing here MS Word. Okay, so MS Word हर पेज के ऊपर आपको नजर आएगा because it's my title, so it will come in every page. Okay, now again I am going to insert. Now I am going to apply footer. फूटर के लिए भी आपके पास ये बिल्ट इन ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास पेज नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोई भी आप ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप यहाँ से एडिट फूटर भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हो, यू कैन रिमूव इट, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बिल्ट इन तो आप मोर फूटर्स पे क्लिक करके भी ऑनलाइन इंटरनेट अगर आपको अवेलेबल है तो आप office.com से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस वन, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है पेज 1 of 1 कि आपका जो भी हर पेज जो जिस पेज पे आप जाओगे तो वहां पर आपको ये नजर आएगा, ठीक है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फूटर, ओके। और यहाँ पे जब आप क्लिक कर देते हैं हेडर एंड फूटर के ऊपर तो ये आपका, ये देखें आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज है। आप जब आप नीचे जाएंगे पेज के डाउन आप करेंगे तो आपके पास ये पेज 1 of 1 आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टाइप समथिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको ये देखो, लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेज 1 of 1 यानी कि वी आर ऑन द फर्स्ट पेज। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड पेज। ये देखिए ये सेकंड पेज स्टार्ट हो गया है, अब आ रहा है 2 of 2। तो ये सेकंड पेज है और इसके नीचे जब मैं आपको लेके जाऊंगी तो यू विल सी फूटर और उस पे आपके पास आ रहा होगा 2 of 2, सॉरी ये देखिए 2 of 2। इट्स मीन्स वी आर हैविंग ऑन द पेज ऑफ पेज 2 एंड टोटल पेजेस कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, दैट इज 2। अभी क्योंकि हमारे पास टोटल पेजेस 2 हैं तो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग 2 of 2। अब अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हो तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 of 2। इट मीन्स वी आर हैविंग 2 पेजेस as a whole in the document and now I am on the first page. Okay, so this is how we apply header and footer. Simply go to the insert, click on header and select the style of your header and simply give the word, and then if you are going to apply the footer simply click on it, select the style of your own choice and then apply it accordingly. Next topic is footnote and endnote. Footnote is basically additional information which we give at the end of the document on every page of the document. For example, आपने कोई ऐसा word लिखा है जिसके बारे में आप अपने document के अंदर तो उसको explain नहीं करना चाह रहे, but you are going to tell the audience that what is the meaning of that particular word or what is the meaning of particular book. For example, आपने एक ऐसी book का नाम लिया जिसका आप बताना चाह रहे हैं कि ये बुक जो है पब्लिश हुई थी लेट्स से 2010 में और इसका ऑथर ये था, तो आप उसमें फुटनोट यूज करते हैं जब आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, ओके। एंड नोट जो है वो सिमिलर है फुटनोट के, बट इसमें क्या होता है दैट यू आर गोइंग टू गिव द रेफरेंस। जो भी आपने कोटेड इंफॉर्मेशन यूज की होती है, कोई मटेरियल यूज किया होता है, कोई कोड आपने यूज की है और आप उसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि ये चीज जो है ये मैंने फलां बुक से या फलां इंटरनेट के से आर्टिकल से उठाई है, तो उसके लिए आप एंड नोट यूज करें, ठीक है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे कि मैं आपको वर्ड पे करके दिखाऊंगा।
ओके, सो नाउ वी आर हियर अगेन इन ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने जहाँ पे भी एंड नोट या नोट अप्लाई करना है आपने टेक्स्ट लिख लिया। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट दिस सेंटेंस, आई लव पाकिस्तान। ये मैंने कहाँ से लिया है या इसके बारे में मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ दैट व्हाट इज पाकिस्तान एंड व्हाई वी लव इट। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली go on to the reference in the menu bar। आप references में आएंगे, click on insert end note। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे it will take you to the end of the document because जो आपका end note होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि we are having 2 pages, ठीक है, of the document। So again I am at the end of the document। तो यहाँ पर 1 आ गया रोमन में, जो भी आपने स्टाइल देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे सपोज करें मैं एक साइट दे रही हूँ www.pakistan.com। ओके, ये मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पाकिस्तान तो सिंपली विजिट दिस साइट। ठीक है, अब आप आ जाए फर्स्ट पेज पर वापस, जो आपका फर्स्ट पेज है, कम टू दैट पेज। ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो आपको आई यानी कि रोमन में जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर लाते हैं तो इट विल शो यू द वेबसाइट नेम जो कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है www.pakistan.com। ठीक है, ये आपके सामने विजिबल हो जाता है। तो इस तरह यू कैन अप्लाई एंड ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू apply in footnote। Okay, and you know that footnote will come at the end of the page। The basic difference between footnote and endnote is endnotes comes at the end of the document and footnote can become after at the end of your page। Okay, current page जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसके एंड पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो and I want to tell you the readers about पाकिस्तान के पाकिस्तान क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पाकिस्तान जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड इज दिस, इट्स अ थिंग, इट्स अ कंट्री नेम और इट इज समथिंग एल्स। सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इंसर्ट फुटनोट। तो यहाँ पर वो आपसे कहेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो आई विल राइट दैट पाकिस्तान इज द नेम ऑफ कंट्री। ओके, अब आप वापस आएंगे अपने पर। अब यहाँ पे आप देखोगे आई एम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज, जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहीं के एंड पे, मैं डॉक्यूमेंट के एंड पे नहीं हूँ। सो आई एम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज। नाउ गो बैक एंड सी, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है और जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो आपको वो लाइन जो है आपके पास वो शो होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये जो आपका पार्ट है ये किस चीज को बिलोंग कर रहा है, किस चीज को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री का नाम है। ठीक है, so this is how we insert footnote and endnote। Now the last topic of today's lecture is watermark। Watermark is basically a picture or it can be a text that appears behind the document contents। ये आपको पीछे से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ड्राफ्ट, तो ये आपको थोड़ा सा शेडो में नजर आएगा और वो आपको बताएगा कि किस तरह से जो है ये हम लोग इसको करते हैं। और ये बेसिकली यूज होता है कि जब हमने कोई चीज ऑथराइज करनी होती है कि इट हैज बीन मेड बाय मी और इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता, इसमें कोई यूज नहीं कर सकता, या समटाइम्स वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने यूज करना होता है। ठीक है, सो वी यूज वाटरमार्क फॉर दिस पर्पस। हाउ आई कैन अप्लाई, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। Okay, so here we have to go from the menu bar in the design and here you are having an option of watermark। Okay, simply click on it। Now these are the styles, इस way में आप watermark apply कर सकते हो। ठीक है, if you want diagonal shape you can use this, you can use this। If you want to keep it in the horizontal form you can use this, and if you want to change it, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनमें से कोई चीज नहीं लेनी है, सिंपली क्लिक ऑन कस्टम वाटरमार्क। When you click on it, so it will ask you that what kind of mark you are going to present or make in your document।
either it is a picture watermark or text watermark. पहले I am going to tell you about the text watermark. अगर हमें text लगाना है तो कैसे लगाएंगे? Simply click on this option, it becomes visible. यहाँ पर आपने text लिखना है, जो भी आपका, for example आपने लिखना है computer, okay? जो भी आपने font size change करना है, select करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं. उसके बाद आपने size जो रखने हैं वो भी आप रख सकते हैं. For example 54 मैंने रख लिया है. कलर आपने जो रखना है वो रख सकते हैं. एंड देन आपने डायगोनल रखना है, डायगोनल कर लें. हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल रख लें. इट्स अप टू यू. एंड देन सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लोज इट. अब नाउ आई विल शो यू दैट हाउ इट्स लुक लाइक. ये देखिए, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. मैं इसको थोड़ा सा साइज आपको छोटा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए. ठीक है. So this is how it present on your page. Okay. Now I am going to tell you how we can insert picture watermark. Simply click on picture watermark. यहाँ पे आपने select करनी picture. Okay. So it maybe take some time. आप अपने files में से भी select कर सकते हैं. आप इसको यहाँ से भी search कर सकते हैं. For example मैं यहाँ पे search कर रही हूँ next pencil. Okay, so I am having different kind of pencil over here. For example, I select this. Okay. और आप इस पे insert करें. Okay, so I am selecting this pencil. Click on insert. Okay, then if you want to keep the scale like this, वो भी आप देखना चाह रहे हो. For example, I am keeping it 150% or then apply. Okay, so this is how you do it, and I show you that how it's like this. Okay, depends पूरी पेज पे समझे आपको नजर आएगी. So I hope you understand it, and please don't forget practicing it, because जब तक आप practice नहीं करेंगे you cannot understand how these features help you out in making your document more powerful, more beautiful and more impressive. Okay, so thank you so much for your watching, and if you like my video then please subscribe my channel. Thank you so much. Allah.